afternoon, ladies and gentlemen. I am Arshi, the moderator for this conference call. Welcome to the earnings conference call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco, to discuss the financial results for Q1 FY26. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question-answer session. At that time, if you have a question, please press star and 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana. Thank you, and over to you, sir. Thanks, Arshi. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the Ice Make Refrigeration Limited Q1 FY26 earnings conference call. We appreciate your time and participation today. Our financial results for the quarter are available on the company's website as well as on the stock exchanges where we are listed on NSE. Before we begin, I would like to remind you that today's discussion may include forward-looking statements. These are based on current expectations and assumptions and are subject to certain risks and uncertainties, both known and unknown, that may cause actual results to differ materially. We encourage participants to review these statements in conjunction with the risk disclosures outlined in our investor presentations and regulatory filings. A little overview of the company. Ice Make Refrigeration Limited is one of India's leading manufacturers of innovative and energy-efficient refrigeration solutions since 1993. The company has catered to the diverse cooling needs of industries like dairy, food processing, hospitality, pharmaceuticals, logistics, and more. With a product portfolio spanning over 50 solutions across 4 verticals: cold rooms, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, and ammonia-based systems, the company continues to lead with a customer-centric and technology-driven approach, serving clients across India and exporting to over 24 countries. Little bit overview of the track record over the last 5 years. Ice Make has built a consistent and credible performance record, marked by strong top line and bottom line growth, steady margin improvement, and operational efficiency, creating a solid foundation for sustained value creation. Over the past 5 years, the company's revenue has grown at an impressive CAGR of 13%, increasing from about 138 crores in FY20 to 480 crores in FY25, while net profit has surged at a robust CAGR of 43.5% during the same period, rising from 3.61 crores to 22.90 crores. Operating profit has also shown a consistent upward trajectory from 4 crores to 43 crores, maintaining healthy margins in the 8 to 11% range. The company has significantly optimized its working capital cycle, reducing it from 37 days to now almost 19 days, underscoring improved operational execution and a stronger cash flow discipline over the same period of 5 years. The company's market capitalization has surged nearly 1,000%, reflecting growing investor confidence and sustained value creation. Now, I would like to introduce our management team present with us today. Let me welcome Mr. Chandrakant Patel, Chairman and Managing Director; Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy; Mr. Ankit Patel, Chief Operating Officer; and Mr. Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer. During today's session, the management will talk about the financial and operational performance for Q1 FY26, strategic updates in business drivers, key market opportunities, the road for sustainable growth. Following that, we will be happy to take your questions. With that, I would now like to hand over the floor to our Chairman and Managing Director, Mr. Chandrakant Patel. Sir, the floor is yours, sir. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I hope you are all doing well. It gives me great pleasure to welcome you to the Q1
FY26 earnings call of Ice Mac Refrigeration Limited, and I thank you for joining us today. While our quarterly numbers show strong revenue growth of over 30% year-on-year, this performance must be seen in context, large story, the opportunity and challenge shaping our industry and our country. India is one of the largest producer of agricultural goods, dairy and perishable in the world. Yet every year we lose a significant portion of this produce. Estimate range from 20 to 40% due to gap in cold chain infrastructure, inefficient logistics, and limited access to temperature control storage in rural and semi-urban areas. Farmers often face distress sales because they cannot store their produce for the right market timing. Similarly, food processing companies, pharmaceutical, quick service restaurants, and exporters face hurdles in maintaining quarterly quality standards due to fragmented supply chain and outdated infrastructure. Urbanization, rising income, and export growth are driving demand for fresh and processed products. But meeting this demand requires reliable, energy efficient, and scalable refrigeration solutions. That's where Ice Mac plays transformative role. Our cool room help farmer and agri producer store their produce longer and sell at better price. Our industrial and commercial refrigeration system enable food processors, hospitality chain, and QSR plant to maintain consistent quality. Our transport refrigeration ensures that perishable goods travel from farm to plate in optimal conditions. We are also innovating in ammonia-based and eco-friendly solutions to help our clients meet their ESG goal while reducing operational cost. The demand for this solution is not a passing trend. It's structural long-term opportunity. India's cold chain market is projected to grow at double-digit rates over the next decade, driven by rising consumption, growing export, and government initiatives for food security and value addition. In Q1 FY26, while we recorded a temporary net loss of 1.47 crore due to seasonal input cost fluctuation, higher finance cost, depreciation, and inventory adjustment, our order book remaining strong, our customer base expanding, and this headwind are short-term, but opportunity ahead for us is long-term and sustainable. Our strategy is clear: to deepen our presence in demand-led sectors such as agriculture, food processing, pharmaceutical, dairy, and institutional clients, to keeping innovating with technology-driven, energy-efficient solutions, and to execute with operational discipline. We see ourselves not just as a refrigeration manufacturer, but as an enabler of India's food security, export competitiveness, and sustainable growth. This is the vision driving our work and shaping our roadmap for the years ahead. With that, I will now hand over to
our CFO, Mr. Ankit Patel, to take you through the financial performance overview, and Mr. Nikhil Bhatt for business update. Thank you. Thank you, MD sir. Good afternoon, everyone. I will now walk you through Ice Make Refrigeration financial performance for the quarter ended June 25, both standalone and consolidated. During the quarter, we saw strong traction across all our key segments, particularly in cold room and commercial vertical. Our continued focus on demand-driven sectors such as dairy, ice cream, agriculture, food processing, pharmaceutical, and specifically quick commerce. For consolidated financial performance of Q1 FY26, revenue from operations stood at 111.50 crore. It is up by 30.90% year-on-year compared to 85.23 crore in Q1 FY25. This growth was driven by a strong traction in many segments. EBITDA came at rupees 4.53 crore compared to 6.13 crore in Q1 FY25. The EBITDA margin declined to 4.06%, mainly due to moderate scale of operation of new added verticals and its related expenses. Profit after tax was a bit negative, 1.47 crore, as against a profit of 3.64 crore in the same quarter last year. For standalone financial performance of Q1 FY26, the standalone revenue was 111.85 crore, growing from 83.70 crore in Q1 FY25. EBITDA on a standalone basis stood at 4.44 crore compared to 6.30 crore year-on-year. Standalone PAT was negative 1.38 crore compared to 3.85 crore in the same quarter last year. The decline in the margin is a short-term impact caused by recent capex and new vertical-related operational expenses. Scale up of our new vertical will be visible in full year FY26. Despite pressure on profitability, our revenue growth remains strong and well diversified across verticals and geographies. We are confident that the challenges pertaining to business scale-up will be addressed in upcoming quarters, and our strategic investment and other plans for business growth will support our margin expansion in long-term growth. We are very confident about business feasibility and our plan. We are committed to improve our financial performance in upcoming quarters. Thank you. With that, I request our strategy head, Mr. Nikhil Bhatt, to give you business updates. Thank you. Thank you, Ankit, and good afternoon, everyone. I am pleased to present the strategic business highlights and updates on our regional and vertical performance, project executions, order book, and future roadmap. During Q1 FY26, we witnessed encouraging growth momentum across multiple geographies. Key highlights include maintained leadership position in cold room and dairy segment of about 53% of the total revenue. We have significantly achieved in the North region also, which has grown by 15% year-to-year, led by demand from the QSR and the e-commerce business. Southern region is also maintained the 15% growth, and Eastern region followed by 12%, with growing traction in agro-processing and institutions acquisition. Export market is also maintained at 4.51 crores in Q1, is the 3% of the revenue share, and having a pending order of 9.65 in the export market. We are seeing steady diversification across business verticals. The cold room will be the largest contributor with revenue of 57.43 crores, approximately 51% of the project executed in food processing. Industry and refrigeration is also maintaining the 3% of revenue sharing, amounting to 3.4 crores, driven by the large orders of dairy and food parks. Transport refrigeration witnessed year-to-year growth of 6%, about 6.74 crores, spanning well in reefer vehicles to pharma and perishables. Commercial refrigeration and others has accounting of 17% of selling, that is 19.38 crores,
with moderate growth with focus on institutional clients and small retail. Ammonia projects include ammonia vertical results include projects of about 6%, amounting to 6.56%. Apart from that, our new vertical of gas freezers as the commercial freezers as well as the continuous panel business are doing well. We are getting a good reference orders as well as the good numbers in the value also. For these two projects, we are optimistic that these two products will be very much helpful in our growth. So far as the Rajesh project is concerned, the dairy project which we were running on the Haringata in the West Bengal, it is about to finish and it is handover process in on the way. We are having a current order book, very strong current order book amounting to 173.12 crores. Consolidated order book strength includes strong revenue visibility for the coming quarter. Cold rooms is about 26.63, industrial refrigeration is about 3.27, transport refrigeration about 2.21 crores, commercial refrigeration is 17.38, ammonia vertical is about 52 crores, and the new product verticals, the gas freezers is having a 1 crore order on book, and the remarkable achievement is the continuous performance is about 33.66 crore of order on hand. In the commercial freezers verticals, we are just planning for the new product development as well as the introduction of a new product related to HoReCa segment and also for the water coolers. We have the brand copy of about 7 all India based and your dealer distributor network of about 60 all India based. So we are also hopeful that our gas freezer business, the commercial refrigeration new segment will be also improving our growth. Looking at our strategy remains focused on the expanding into tier 2 and 3 cities with ready to install cold rooms and other equipment. Doubling our QSR and cloud kitchen segment, especially with high growth institutional clients. Entering new export markets in MENA and Africa with compact refrigeration units. We have done product innovations for the IoT enabled temperature control system for cold room, which will help to remote monitoring of the system. We are strengthening our after-sales service and AMC portfolio to enhance our recurring revenue. We are confident that with our strong execution, innovation pipeline, and Ice Make is well positioned to scale new heights and deliver value to all stakeholders. Thank you. Now let us open the floor for questions and answer this question. Thank you, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. पार्टिसिपेंट्स अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप अपने फोन पर स्टार और 1 दबाइए. The first question is from the line of Mr. Arnav Sakhuja from Ambit Capital. Please go ahead. Thank you for taking my question. Could you please repeat what is the revenue contribution from each of our product segments? Also vertical you are asking, right? Yeah, each vertical. Okay. The cold room segment contributed around 51%. Industrial is around 3%. Commercial segment at 17%. Transport refrigeration at 6%. Ammonia project combined at 6%. Continuous panel at 9%. And commercial freezer 8%.
Okay, thank you. My next question is, could you please give us a bit of an update on what is the status of the next phase of CapEx that we have been planning, the 150 crore CapEx? There are some dialogues currently going on. There are some acquisition-related, technology type, JV-related discussion is also going on. They all are very positive discussions. Maybe in a short while, at an appropriate time, you may get an update. But currently, we are mainly focusing on stabilizing our retention and new CapEx plan related updates will be communicated in a due course once there is any update in that. Right. And in our last call, we had guided for a revenue of 650 crores for FY26 with 9.5% to 10.5% EBITDA margin. So are we sticking to that guidance, or is there any update on this? In that 650 crore top line is fine. We will be able to achieve. And EBITDA margin which will get somewhere around previous EBITDA margin, we may close in current financial year. Maybe around 8-9% full financial year. Okay. Thank you for answering my questions and best of luck. Okay. Thank you. Participants, please ask your questions in Hindi. The next question is from the line of Mr. Ajay Surya from Niveshaay Investment Advisory. Please go ahead, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? Yes. हाँ, आवाज आ रही है. सर मेरा क्वेश्चन न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग था. तो मुझे कंट्रीब्यूशन या स्प्लिट मिल सकता है पफ पैनल और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में? और आप अगर उनका ग्रॉस मार्जिन इंडिविजुअली या ब्लेंडेड बेसिस पे बता पाएंगे तो. और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये वाले डिवीजन में हम अभी एबिटा लॉस कर रहे हैं, मेरा अजम्पशन ये. तो क्या सेल्स लेवल पे हम इस पे ब्रेक इवन करेंगे? सर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करेंगे? व्हाट वाज दैट? EBITDA मार्जिन आई गॉट इट. द फर्स्ट वन. हाँ सर, स्प्लिट जानना था न्यू बिजनेस में पफ पैनल और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के बीच में. अभी जो बिजनेस हुआ है Q1 का, उसमें कंटिन्यूअस पैनल का 9.61 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है और कमर्शियल फ्रीजर का 8.61 करोड़. और पूरे साल का ब्रेक इवन की बात करें तो कंटिन्यूअस पफ पैनल में 80-82 करोड़ पे ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का कॉस्ट रिकवर करने के बाद ब्रेक इवन आ जाएगा. EBITDA लेवल पे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा इस लेवल पे भी. और कमर्शियल फ्रीजर में 55 करोड़ के आसपास 50-55 करोड़ के बीच में ब्रेक इवन आ जाएगा एनुअली. और सर ये जो अपने नए बिजनेस है, तो अगर थोड़ा इसके बारे में और बता पाएंगे कि हमने हमारे प्रोडक्ट कौन सी ज्योग्राफी में सेल किए या इधर के साइड, इस पर्टिकुलर साइड पे कितने डीलर्स अपन ने नए ऑनबोर्ड किए, और ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट भी अगर बता पाए. नए बिजनेस की बात करें तो जो सेल्स फ्रीजर या कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में तो इनिशियली जैसे बेस में डोमिनेटेड है तो वेस्ट से हमारा कॉम्बिनेशन ज्यादा है. और वैसे साउथ में भी हमारा कंट्रीब्यूशन है. और डीलर नेटवर्क की बात करें तो वी हैव अपॉइंटेड अराउंड 60 डीलर्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और आउट ऑफ दैट वेस्ट में 40 नंबर्स रहेंगे इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड मुंबई ऑल्सो. नॉर्थ में 2 या 3 है और साउथ में 5 है. कुल मिला के हमने अभी तक 60 डीलर्स को हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं. और नई प्रोडक्ट के लिए हमने 7 ब्रांड टॉपिक का हमने स्टार्ट किया है. और आगे गोइंग फॉरवर्ड वी आर हैविंग गुड नंबर्स इन द पाइपलाइन फॉर द ब्रांड टॉपिक ऑल्सो. गॉट इट सर. और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ तो सर जैसे जो नए बिजनेस साइड पे
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम शायद थोड़ा प्राइस कॉम्पिटिटिव होने के कारण इधर कम मार्जिन बना रहे हैं, बट जब के हम स्केल अचीव करते हैं या लॉन्गर टर्म में, तो हम यहाँ पर भी अपने EBITDA मार्जिन बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सर वही जानना था कि क्या EBITDA मार्जिन हम नए वाले बिजनेस में टारगेट करेंगे, नॉट अभी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में, मैं लॉन्गर टर्म के लिए आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। वैसे 10% प्लस के EBITDA दोनों वर्टिकल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक वर्टिकल है वो तो इसी साल में ब्रेक इवन से भी पार हो, दोनों ब्रेक इवन पे तो होंगे। स्पेसिफिकली हमने इसको हल्का टॉप लाइन का टारगेट रखा है, भले ये वाले क्वार्टर में उनका कंट्रीब्यूशन दोनों को मिला के 18 करोड़ का था, बट ये ऑटोमेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें थोड़ा सा सीजनल इम्पैक्ट भी होता है। अभी स्टॉक करने का भी मतलब कॉमर्शियल सीजन में हमारा स्टॉकिंग भी चालू है, हमारे वेयरहाउस में हम उसको स्टोर कर रहे हैं। इनकी जब डिमांड आती है तो मतलब वर्टिकल वाइज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो एक साथ काफी चंक में हमारा सेल्स भी होता है। प्रोडक्शन ऑटोमेशन होने की वजह से उतने चैलेंजेस नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल वर्टिकल में हम प्रोडक्शन ना बढ़ा पाए। तो हमें लगता है ये वाले वर्टिकल पूरे साल में हमने जो 150 करोड़ का टारगेट कंट्रीब्यूट किया था, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड EBITDA मार्जिन है उस लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पैक्स के ऊपर हमारा इस बार क्योंकि कैपेक्स हुआ है, ये इंटरेस्ट और एप्लीकेशन का के हिसाब से है, तो वो बर्डन रहेगा, लेकिन EBITDA लेवल मुझे लगता है सर 9% के आसपास का फिर भी इस साल हम अचीव कर लेंगे। गॉट इट। और सर मैं अगर और क्वेश्चन पूछता हूँ तो I'm sorry, sir. I request if you could rejoin the queue. Sure. Thank you. Participants, it's a request. Please restrict your questions to 2 per participant. If you have any follow-up questions, please rejoin the queue. The next question is from the line of Miss Maitri Shah from Sapphire Capital Partners LLP. Please go ahead, ma'am. Yeah, hello. Am I audible? Yes. एक रिक्वेस्ट है, could you please repeat order book का bifurcation again? As of now ऑर्डर बुक जो है वो हमारा 173 करोड़ है। उसमें से कोल्ड रूम की बात करें तो 26.6 करोड़ है, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में 3.27 है, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन डिवीजन में 2.21 करोड़ है, एक्सपोर्ट में 9.65। तो एक्सपोर्ट जो हमारे होते हैं वो बाकी सभी प्रोडक्ट में होते हैं, जस्ट टू हैव अ स्पेशल आइडिया फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर, बट इट इंक्लूड्स इन द टोटल करंट ऑर्डर बुक। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन is 70.38, ammonia refrigeration is having 52 crores of orders, and continuous panel is around 33.66 crore, and the commercial reserve is 1 crore plus. और previous participant को आपने बोला था कि this year will have a target of 150 crores from the new business, तो PUC और ये freezer के business में, and will achieve 9% EBITDA margin. Is that correct? हाँ, EBITDA मार्जिन हम इस साल पूरे साल का 9% के आसपास सेट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ये नए वर्टिकल में प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से भी हमारी थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग है। तो गोइंग फॉरवर्ड अपकमिंग ईयर में हम अपने स्टैंडर्ड वाले मार्जिन पे आएंगे। 1% का हिट ये वाले साल में रहेगा स्पेसिफिक फॉर द टाइम भी। ओके। और हेलो, और ये जो 1000 करोड़ का हमारा टारगेट है, तो यू थिंक वी कैन अचीव इट 1 year prior, like FY27 में हम अचीव कर सकते हैं rather than FY28? हमें लगता है 27-28 में 1000 करोड़ वाला जो प्लान है हम उसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। चैलेंजिंग है, बट रिलेटिवली जिस हिसाब से हमने कैपेक्स प्लान किया है वो वाले साल में हम अचीव कर लेंगे। उससे पहले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, नहीं अचीव हो सकता वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें लगता है 27-28 के लिए 1000 करोड़ वाला टॉप लाइन अचीव करना हमारे लिए जस्टिफाइड और अच्छा सही रहेगा। 27-28 तक हमारी जो नए कैपेक्स है वो भी एस्टाब्लिश हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे जो 1000 करोड़ के अंदर 360 CR
नए बिजनेस नए कैपेक्स के थ्रू आएंगे और प्रोडक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद आपको स्केल करना आसान है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चेन बन जाते हैं, प्रोडक्ट से कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ब्रांड नॉन होती। तो 1000 करोड़ पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। 1000 करोड़ करने में 1000 करोड़ जब करेंगे तब हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी 1200-1300 करोड़ से ज्यादा होगा। तो हमें कॉन्फिडेंस है हम 1000 करोड़ करेंगे। कहीं हमारे जो अभी छोटे बिजनेस है, डिहाइड्रेशन वर्टिकल, हमारे जो प्रोजेक्ट और एमोनिया, वो बिजनेस को भी 27-28 तक 10 साल हो जाएंगे। वहाँ भी इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट फेज जो रहता है ना 6-7 साल का, वो करने के बाद अब उसको भी हमें स्केल करना आसान होगा। तो आप निश्चित रहिए, हमें अपने आप पे भरोसा है, इसमें की पूरी टीम 1000 करोड़ करने के लिए कॉन्फिडेंट है और पोटेंशियल है इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। इम्पोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, अब हमें डोमेस्टिकली हमारे कंपोनेंट अवेलेबल है, जो शायद मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 27-28 में हम ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए भी चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सोर्सिंग है कंपोनेंट कमोडिटी सोर्सिंग वो इंडिया से होगी, इसलिए हम अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे। इनका 1000 करोड़ हम लोग कर लेंगे। और 360 नए बिजनेस से करेंगे और बैलेंस जो हमारे बिजनेस है उससे हम बाकी का रेवेन्यू करेंगे। आज दिस 1000 करोड़ से हमारे मार्जिन क्या हो गए? हमने 10% EBITDA, 10-10.5% का EBITDA हमने बेंचमार्क रखा हुआ है। और नई प्रोडक्ट होती है जब तक वो एस्टैब्लिश होती है, थोड़ा सा ये एंट्री लेवल वाली हमारी टैक्टिक्स होती है, लेकिन 1000 करोड़ पे 10% के आसपास का 10-10.5 का EBITDA अचीवेबल है। और एनी अदर नए प्रोडक्ट हम ऐड करने वाले हैं पैनल्स और फ्रीजर्स के अलावा? पैनल्स और फ्रीजर्स के अलावा समझ नहीं पाए, थोड़ा दोबारा एक बार बोलो। आप मार्जिन की बात कर रहे हो नए प्रोडक्ट? नहीं, नए प्रोडक्ट हमको ऐड करने वाले हैं पैनल्स और फ्रीजर्स के अलावा। नई प्रोडक्ट ऐड करने में अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास इनफ प्रोडक्ट है। अगर हम वर्टिकल वाइज देखें तो 7 वर्टिकल है। हम ज्यादा कोई रेफ्रिजरेशन को ज्यादा डेविएट किए बगैर हम इसी बास्केट के साथ अब तो आगे चलेंगे। हो सकता है आगे जाके स्केल होने के बाद हम कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए सोचे, लेकिन अभी तो हम यही प्रोडक्ट रखेंगे। That is it from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mr. Bhargav Buddhadev from Ambit Asset Management. Please go ahead. Good afternoon, sir, and thank you for the opportunity. सर, ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है जो ये क्वार्टर में आया है, वो पूरे साल में यही ऐसा ही क्वार्टरली रन रेट रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से भी और बढ़ सकता है? वैसे डेप्रिसिएशन और एम्प्लॉय कॉस्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। फाइनेंस कॉस्ट भी तकरीबन सिमिलर रहेगा। हमारी अभी जो वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, अभी हमारे कैपेक्स प्लान में हमने प्रॉफिट डिप्लॉय किया हुआ है, तो हम अभी 80 करोड़ की हमारी वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, तो थोड़ा सा उसको भी हम एनहांस करेंगे फ्यूचर की नीड को लेके और अभी के स्केल को लेके, क्योंकि दूसरे कैपेक्स के लिए भी मतलब पॉसिबिलिटी या सारी चीजें हो सकती हैं। बट मोरलेस फाइनेंस कॉस्ट भी इससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होगा, तो ये तीनों की रन रेट सेम रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो सकती है क्योंकि स्केल बड़ा होता है ना। जैसा हम लोग 3rd क्वार्टर में हमारा ऑलवेज 1st क्वार्टर से 2 टाइम सेल होता है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट डबल नहीं होती, तो एफिशिएंट ओवरलोड होने के टाइम पे आपके आउटपुट अच्छे होते, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का रन रेट एवरेज और पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी 2 कॉस्ट तो फिक्स है, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस, वो तो एक परसेंटेज पे लगते रहेगी। अभी WDV की वजह से ऐसा है कि भी ये वाले साल में हमारी मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कॉस्ट अभी बुक्स पे हिट हो रही है,
मतलब गोइंग फॉरवर्ड टाइम में डेप्रिसिएशन कॉस्ट रिड्यूस होता जाएगा। ओके। दूसरा सर, अगर हम हमारा अदर एक्सपेंस का भी रन रेट देखें तो वो पूरे साल में जनरली 16-17% के आसपास होता है ऑफ रेवेन्यू, बट ये क्वार्टर में करीबन 19% आया था। तो पूरे साल में हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये अदर एक्सपेंस का रन रेट कितना होना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू? स्पेसिफिक ये मतलब एक्सपेंस के रन रेट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमारा सेल्स मिक्स भी उसके ऊपर आ जाता है। अगर किसी क्वार्टर में हमने जैसे प्रोजेक्ट का बिजनेस ज्यादा किया होगा तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो हिट करेगा, बट पूरे साल में मुझे लगता है कि जो मेजर एक्सपेंसेस है उसमें हाँ स्पेसिफिकली फ्रेट वाला कॉस्ट है वो थोड़ा सा ऐड हो सकता है, क्योंकि जो नए वर्टिकल है उसमें फ्रेट कॉस्ट थोड़ा सब्सटेंशियल रहता है। बाकी अदरवाइज ये जो 3 एक्सपेंस है उनका रन रेट सिमिलर रहेगा। बाकी के एक्सपेंस में 1-2% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। अगर ये वीसी कूलर पे हमने ज्यादा बात नहीं की, तो वीसी कूलर में कैसा है रेवेन्यू रन रेट अभी, और पूरे साल में कितना सोच रहे हैं? विजिकुलर का रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन अभी हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 700 मशीन पर मंथ, मतलब 7,500-8 हजार मशीन है। अभी हम लोग हमारी जो नया कैपेक्स किया उस लाइन को मॉडिफाई करके वहाँ भी हम लोग अभी 1000 मशीन पर डे पर मंथ कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, मतलब दोनों मिला के 18-19,000 मशीन पर ईयर बनेंगे। तो विजिकुलर में अभी भी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी में 100% हम लोग सेल कर देते हैं। सॉफ्ट सप्लाई ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन स्टॉकिंग भी नहीं होता है। तो उस डिमांड को देख के हमने हमारे नए कैपेक्स किए थे जो चेस्ट फ्रीजर को लेके प्योरली उसको मॉडिफाई करके डिमांड देख के हमने विजिकुलर को एक पार्शियली कन्वर्ट किया हुआ है, और विजिकुलर का बिजनेस अच्छा है। वो हम एक साल ऐसा करने के बाद हम अगले साल के लिए एक अच्छा स्केल में करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई सारी बेवरेजेस कंपनी आपके साथ बल्क डील भी कर सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छा है। अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है विजिकुलर में, इसीलिए टोटल कमर्शियल में 15% कंट्रीब्यूशन विजिकुलर से आता है। और लास्टली सर, ये टेस्ट फ्रीजर के लिए हमें हमारा ये आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो शायद ये दिखेगा नहीं। तो उसपे कैसा है प्रोग्रेस? एक्चुअली टेस्ट फ्रीजर प्रोडक्ट है ना, जैसा हाउस होल्ड में हमारे यहाँ एयर कंडीशन वॉशिंग मशीन होते हैं, उसमें ज्यादा स्किल मेन पावर की जरूरत नहीं होती है, तो और जल्दी से स्किल डेवलप करना भी कोई चैलेंज नहीं है। और इंडिया में साल में 20 लाख यूनिट यही कैटेगरी की प्रोडक्ट बिकती है, तो आउटसोर्स सर्विस सब जगह पर अवेलेबल है। आपके नंबर्स होते हैं तो आप लोगों से एक्सक्लूसिव टाई अप कर सकते हैं, अदरवाइज एक वेंडर सबके लिए काम करता है। तो चैलेंज इनका कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट और एक हमारा फॉलो पे डिपेंड करता है। अपने खुद के रोल पे टीम करने की जरूरत नहीं होती, ये सबका बिजनेस मॉडल सर्विस में यही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. The next question is from the line of Ms. Resha Mehta from Green Edge Wealth Services LLP. Please go ahead, ma'am. Thank you. Good afternoon, sir. Sir, so एक तो था कि अगर फेज 2 का अगर हम केपेक्स निकाल दें, उसको एक्सक्लूड करें, तो हम ये साल क्या केपेक्स प्लान कर रहे हैं? मतलब दोबारा एक बार बताएंगे? हाँ, मतलब फेज 2 में हमारा जो प्लान है वो 150 करोड़ केपेक्स का है। तो अगर वो 150 करोड़, बिकॉज उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कब होगा, तो अदरवाइज उसको एक्सक्लूड करके हम कितना केपेक्स प्लान कर रहे हैं ये सब? इसको एक्सक्लूड करने के कैपेक्स तो हमारा डे टू डे अपग्रेडेशन और ऐसे कुछ होता है वो है, तो मुश्किल से 7-8 करोड़
हम लोग करते हैं रूटीन में, जो कोई पुरानी है, कोई नया टेक्नोलॉजी है, कोई अपग्रेडेड सेमी ऑटोमेशन साइट है, तो 7-8 करोड़ से ज्यादा नहीं है। राइट, तो जस्ट बेसिकली मेंटेनेंस कैपेक्स ही रहेगा हमारा उसको छोड़ के। मेंटेनेंस कैपेक्स, राइट। और ये जो आपने कुछ नंबर्स बताए थे बेसिकली जो अपने न्यू प्रोडक्ट है कमर्शियल फ्रीजर्स और कंटिन्यूस पैनल, वो एक रेवेन्यू लेवल पे ब्रेक इवन होंगे। वो रेवेन्यू लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम हिट करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम ब्रेक इवन अचीव करेंगे ये प्रोडक्ट्स में। हाँ कर लेंगे हम लोगों ने। हमारा टारगेट भी ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा ही है और होगा ये कैपेसिटी। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना, उसका सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, क्योंकि कमर्शियल फ्रीजर वो बेवरेजेस आइसक्रीम की सीजन होती है और थर्ड फोर्थ में, और वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज जो कंटिन्यूस पैनल जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में रेनी सीजन की वजह से बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं सिविल रिलेटेड, ये प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल, लेकिन सिविल प्रोजेक्ट मतलब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ही लगती है। तो दोनों प्रोजेक्ट में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट से शायद ज्यादा ही करेंगे और दोनों का EBITDA कॉम्प्लीमेंट करेगा हमारे पुराने बिजनेस से। और लास्टली जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, तो जैसे कि अगर हम मार्च एंड क्वार्टर की बात करें तो हमारा इन्वेंट्री और डेटर डेज थोड़ा हाई लेवल पे था नॉर्मल से। तो जैसे कि इन्वेंट्री डेज हमारा नॉर्मली 60 डेज के आसपास होता था और वो मार्च एंड में वो 82 डेज था एंड डेटर डेज भी कुछ 10 दिन से बढ़ गया था। तो अभी एज ऑफ जून क्वार्टर इसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आया है इन्वेंट्री। इन्वेंटरी लेवल हम देखें गोइंग फॉरवर्ड तो एग्रेसिव बिजनेस करेंगे और इसमें सारे कैपेक्स भी करेंगे। पास में ये बैलेंस शीट और इससे पहले की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन नेक्स्ट टू नील था मार्च में, लेकिन कैपेक्स के साथ हमने जो अपना प्रॉफिट था उनको निकाला है, कैपेक्स प्रोजेक्ट में डाला हुआ है और वर्किंग कैपिटल की नीड, क्योंकि ये वाले बिजनेस में थोड़ा सा ये जो दो नए वर्टिकल है उसमें हम कमर्शियल फ्रीजर की बात करें तो थोड़ा सा सीजनलिटी इम्पैक्ट भी रहेगा। अभी हम स्टॉकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक पीरियड के लिए टेम्पररी भी हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी, तो उसको ध्यान में रख के हमने अभी एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने का प्लान रखा हुआ है। भले वो हर साल में पीक लेवल पे यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन तो होगा और हमारा प्रॉफिट भी हम कैपेक्स में डिप्लॉय करते जा रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन इस साल में और ये भी हो सकता है थोड़े नेक्स्ट वाले साल के लिए भी रहेगा। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आई मीन तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यूटिलाइजेशन 2 साल में तो रहेगा। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज देखें तो मतलब आप कहने का मतलब ये रहेगा कि इन्वेंट्री डेज जो पहले 60 दिन के आसपास हुआ करता था 60 डेज, दैट विल नाउ टेंड मोर टुवर्ड्स 80 डेज के आसपास रहेगा, या एटलीस्ट 60 डेज रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा बिकॉज हमने न्यू प्रोडक्ट्स में हम एंटर हुए हैं। हमारी ये जो प्रोडक्ट है उसमें हमें थोड़ी इन्वेंटरी भी कैरी करनी पड़ेगी, तो 10-20 दिन मतलब 70 डेज से लेके 80 डेज की वर्किंग कैपिटल साइकिल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, एंड डेटर डेज पे भी हम थोड़ा इंक्रीज लेवल भी देखेंगे क्योंकि हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हमें भी थोड़ा मार्केट में पेनिट्रेट करना है। तो ये सही अजम्पशन रहेगा कि ये डेटर डेज भी जो पहले 60-65 डेज के आसपास हुआ करते थे तो वो भी मोर टुवर्ड 70+ काइंड ऑफ डेज पे रहेंगे। हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को टैप कर रहे हैं और ये जो दो हमारे नए वर्टिकल है उसमें कंटिन्यूअस पैनल अगर प्रोजेक्ट का बिजनेस रहता है तो उसमें डेटा में थोड़ा सा कन्वर्जन रहेगा क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, टेंडर बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। बट अगर डायरेक्ट प्रोजेक्ट हुआ या अदर देन टेंडर हुआ तो उसमें 100% हम पैसा लेके या एलसी बैक हमारा सेल्स रहता है, तो उसमें डेटर्स डे बढ़ने के चांसेस काफी कम है। लेकिन कमर्शियल फ्रीजर वाला जो वर्टिकल होता है वो पूरा डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे होता है, उसमें 30 से लेके अराउंड 40-45 डेज की जनरल क्रेडिट टर्म्स रहती है इंडस्ट्री में, तो वो स्पेसिफिक वर्टिकल में थोड़ा सा क्रेडिट हमारा जाएगा।
Understood. All right. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. The next question is from the line of Mr. Manish, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर, थैंक्स फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन. मेरे दो क्वेश्चन है एसेंशियली. एक तो हम लोग व्हाइट लेबलिंग करते हैं क्या किसी कंपनी के लिए, एंड फिर विच आर दोस कंपनीज एंड हमारे कौन से प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग व्हाइट लेबलिंग करते हैं, एक वो है. दूसरा, अगर हम इस साल का रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे, न्यू सेगमेंट को इंक्लूड करके आपने 650 करोड़ बोला था. तो अगर न्यू सेगमेंट को हटा दे तो 500 करोड़ का गाइडेंस है, जबकि पिछले साल हमने 480 करोड़ का बिजनेस किया था एग्जिस्टिंग सेगमेंट से. तो एग्जिस्टिंग सेगमेंट पर अगर देखा जाए तो गाइडेंस आपका ऑलमोस्ट फ्लैट है. दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट एंड व्हाट इज द रीजन? तो मेरे ये दो क्वेश्चन थे. आपका जो व्हाइट लेबलिंग का क्वेश्चन है, हम लोग व्हाइट लेबलिंग अभी भी हमारे टॉप पैनल जो है डिस्कंटिन्यूअस टॉप पैनल, वहाँ इंस्टॉल कैपेसिटी का शायद 15% हम लोग उसमें भी कोई अदर ब्रांड के लिए करते हैं. कंटिन्यूअस टॉप पैनल में भी कुछ बड़े कस्टमर है जो हमारे कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं, तो प्रोजेक्ट में हम लोग उनके लिए काम करते हैं. खास करके सीएस जो कमर्शियल रीजन जो नया कैपेसिटी, वहाँ इंस्टॉल कैपेसिटी पर ईयर 1.2 लाख मशीन है, जो इनिशियल नई ब्रांड या तो नए प्रोडक्ट के लिए इनिशियली अपनी ब्रांड से करना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग व्हाइट लेबलिंग करते हैं. ईयरली हमारा एजेंशन है और हमारा एफर्ट भी है कि हम 20,000 मशीन हम लोग व्हाइट लेबलिंग में बेचेंगे और 40,000 मशीन हम हमारी ब्रांड में करेंगे. दूसरा एक क्वेश्चन था आपका जो लास्ट ईयर बताया था कि 480 का टर्नओवर था, उसमें भी ये जो दो नए वर्टिकल थी उनका अराउंड 23 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन था. तो इफेक्टिवली देखे तो पुराने वर्टिकल में हमने 11% के आसपास का मार्जिन एक्सपेक्ट किया हुआ है. नए जो ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट है उसमें 150 करोड़ का हमने इस बार टारगेट रखा है. पुराने वर्टिकल में 10 से 12% ग्रोथ है. हमने फ्लैट नहीं लिया है क्योंकि वहाँ इंस्टॉल कैपेसिटी का भी लिमिटेशन है. वो 550-600 करोड़ की ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसलिए हम 500 करोड़ कर पाएंगे. और हो सकता है थोड़ा सा मतलब ये हमने टारगेट रखा है तो इतना तो अचीव हो ही जाएगा, थोड़ा सा प्लस साइड पे भी हो सकता है. मतलब ऐसा हमें नहीं लगता कि ये वाला अचीव करने के लिए उतना चैलेंजिंग रहेगा. तो सर, जो पुराने सेगमेंट्स है, अगर कंस्ट्रेंट्स कैपेसिटी के मामले में, तो उधर हम लोग मतलब कैपेसिटी इंक्रीज करने का सोच रहे हैं क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन? मेंटेनेंस कैपेक्स जो बोलते हैं शायद 100% मेंटेनेंस कैपेक्स नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे अपग्रेडेशन करके आप कैपेसिटी बढ़ाते हैं. कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट कुछ वैल्यू एड करने से आपका सेल वैल्यू बढ़ता है. प्रोडक्ट के बॉटल नेक है जो 100 लीटर के बनाते हैं, वो 200 लीटर की मैन्युफैक्चरिंग में आप रेंज बढ़ाएंगे, तो उसके लिए छोटा मोटा जो कैपेक्स है कुछ आपकी बेसिक फैसिलिटी में कोई कंस्ट्रक्शन में चेंज है, तो ऐसा करके हम लोग उस कैपेसिटी को 650 करोड़ तक तो करेंगे. दूसरा, ज्यादा नहीं करने का एक इसलिए भी है कि ये लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है. अब हार्डवर्किंग में काम करने वाले लेबर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, खास करके थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में. तो उस लिमिटेशन को देख के हम पुराने वर्टिकल में हमारे पास डिहाइड्रेशन वर्टिकल है, एमोनिया बिजनेस भी है जो प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं. लास्ट ईयर भी अच्छा सेल था, तो उस बिजनेस में हमें होप है कि उसको ज्यादा फोकस करें, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की खास जरूरत नहीं होती है. तो 650-700 करोड़ करने की कैपेसिटी के लिए इतना बड़ा कोई कैपेक्स की जरूरत उसमें नहीं होती है. तो ये दोनों फेज एस्टेब्लिश होने के बाद इसके ऊपर भी काम करेंगे. ओके सर. सर एक रिक्वेस्ट था, हमने कोई पीपीटी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज नहीं किया पिछले क्वार्टर एंड ये क्वार्टर, तो अगर वो रिलीज कर सकते हो विद द बेसिक डिटेल्स, तो सम ऑफ दी क्वेरीज जो हम लोग एज पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं कॉल में,
वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। सो नॉर्मली एनुअल बेस पे करते हैं आफ्टर एजीएम या बैलेंस शीट को पब्लिश करने के बाद, मगर एनुअल रिपोर्ट के बेस पे हम शायद विद इन अ मंथ और हम इसको करेंगे पब्लिश। हाँ, और सर मेरे को वो व्हाइट लेबलिंग के रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन था। जैसे कि अगर हम 480 करोड़ का रेवेन्यू जो हमने पिछले साल क्लॉक किया था, उसमें व्हाइट लेबलिंग का कितना रेवेन्यू रहेगा परसेंटेज? 5-6% जितना होगा। 5-6%। एंड इस साल भी उतना ही रहने वाला है एक्सपेक्टेशन? थोड़ा बढ़ सकता है 5-6%। परसेंटेज फॉर्म में देखे तो 8% से ज्यादा नहीं होगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Mausam Shah from Wealth Guardian Services LLP. Go ahead. Hello. Yes, you are audible. Yes, thank you. Thank you for the opportunity. सर मुझे ये पूछना था कि हमारा जो आपने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बोला था स्टार्टिंग में, तो वो क्या था? क्या हमारा कोई रेवेन्यू डिफर हुआ है फ्रॉम Q1 to Q2? मतलब आपका जो इन्वेंटरी एडजस्टमेंट का मतलब था इन्वेंटरी पाइल अप, स्टॉक करना। ओके, मतलब हमने पीएफ वर्टिकल में थोड़ा सीजनल इम्पैक्ट रहता है, तो थोड़ा सा इन्वेंटरी स्टॉकिंग करना होता है, तो उन्होंने उस लिहाज को इन्वेंटरी एडजस्टमेंट में बोला हुआ था, लेकिन उनका इंटेंशन था कि इन्वेंटरी पाइल अप करना। ओके फाइन। ओके, और दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग क्विक कॉमर्स। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोई नए ऑर्डर्स आए हैं? अभी भी फर्स्ट क्वार्टर में हमारा क्विक कॉमर्स से टॉप लाइन में 20% कंट्रीब्यूशन है, और आगे भी शायद लगता है हमारे जो पुराने वर्टिकल में बिजनेस में 18-20% का सपोर्ट रहेगा सेल्स में। अच्छा है, हम लोग ई कॉमर्स के हर एक इंडिया के अच्छे बड़े अकाउंट से हम लोग क्लोजली कनेक्टेड हैं, और जब से शुरू हुआ तब से हमारे पुराने अकाउंट है 3 साल 4 साल से, तो अब उनकी रिक्वायरमेंट हम भी अच्छे से डिलीवर करते हैं सर्विस, और उसमें हम लोगों ने अच्छा हेलो। हाँ जी, आपको जवाब मिला या आपको जानना चाहते हैं? हाँ, यस। और दूसरा ये था कि आपने लास्ट कॉल में बोला था रिगार्डिंग हम लोग जो एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए में, तो अभी आफ्टर टैरिफ भी हमारा प्राइसिंग एंड ऑल दैट आप बोले कि जो चाइना से कम्पीटेंट है। हेलो, तो ये टैरिफ का जो है उसमें ज्यादा अभी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, और देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो बहुत कम है, तो हो सकता है इतना ज्यादा इफेक्ट हमें नहीं हो, क्योंकि यूएस के अलावा भी काफी कंट्रीज में हमारा डेवलपमेंट है या हम ग्रेजुअली हम ग्रो कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और हमने जो फेज 1 का एक्सपेंशन किया फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें मैक्सिमम रेवेन्यू हम कितना जनरेट कर सकते हैं? दोनों वर्टिकल को मिलाए तो 400 करोड़ की टॉप लाइन हम जनरेट कर सकते हैं। ओके फाइन, और इसका एक्सपेक्टेशन का कब तक होगा? ये हो सकता है 2-3 साल में हम पीक लेवल वाली कैपेसिटी में पहुंच जाए। ओके फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. The next question is from the line of Mr. Ajay Surya from Nivashare Investment Advisory. Please go ahead. सर, थैंक्स अपॉर्चुनिटी देने के लिए वापस। सर, जैसा कि मैं अपनी प्रेस रिलीज में देख रहा हूँ, तो अपन ने लिखा है कि जो अपने मार्जिन है वो थोड़े कम हुए हैं क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट, बट सर अगर मैं अपने ग्रॉस मार्जिन देखूँ तो वो सिमिलर रहे हैं अपने हिस्टोरिकल नंबर्स के हिसाब से भी,
तो क्या आप इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी दे पाएंगे कि हायर इनपुट कॉस्ट क्या हम वो अभी जून जुलाई के टाइम में उनको मतलब हायर इनपुट कॉस्ट देख रहे हैं या मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आया। और दूसरा में कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है एज ऑफ नाउ देखे तो कुछ एक मटेरियल के प्राइस हमारे एक कॉम्पिटिटिव और है तो वो वैसे मार्जिन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वैसा कोई इनपुट का एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है जिसकी वजह से हमारे मार्जिन कॉम्प्रेस हो। इनफैक्ट ये वाले क्वार्टर में आप देखेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे हैं क्योंकि हमारा वर्टिकल वाइज जो कंपोजिशन है वो हमारे पुराने वर्टिकल का कॉम्प्लीमेंट करता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट सेल्स के कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इनपुट का कोई वैसा कंस्ट्रेंट नहीं है जो आने वाले टाइम में हमें लगे हमारा मार्जिन कॉम्प्रेस करे। थोड़ा सा नया वर्टिकल में इनिशियल लेवल पे हमने स्ट्रेटेजिक कॉल लिए हुए थे, बट वो फॉर द टाइम बीइंग है, कुछ पीरियड के लिए है, वो भी आने वाले टाइम में उसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट नलिफाई हो जाएगा और वो भी 10-10.5 के मार्जिन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सर अगर मैं नए केपेक्स का फिक्स्ड एक्सपेंस अगर हटा दूं इस क्वार्टर में तो अपने EBITDA मार्जिन वही हिस्टोरिकली के आसपास बैठेंगे, अगर आप बता पाए तो। अगर मैं वर्टिकल का वो 10% के आसपास तो फिर भी आ जाएंगे। ओके सर, ओके। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा अगर आप सर पास्ट 2-3 साल से कंपेयर करके अगर बता पाए कि ओवरऑल डिमांड सिनेरियो कैसा रहा है इस बिजनेस में, कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ डिफिकल्टीज आ रही है ड्यू टू मॉनसून या कोई और अदर रीजन। और सर इसके अंदर ही थोड़ा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगर आप बता पाएंगे कि ऐसा क्या इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है लास्ट 2-3 साल में जिससे अपन इतना अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, कि क्या वो कंसोलिडेशन के टुवर्ड्स इंडस्ट्री मूव कर रहा है या अभी जो अपन जो इनिशियली भी प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है वो इंक्रीज कंपटीशन की वजह से दिख रहा है। अगर आप ये थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे अगर आंसर कर पाएंगे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और आगे जाके कैसा रहने वाला है तो काफी हेल्पफुल होगा। आप जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत कंपटीशन की वजह से प्राइस पे प्रेशर तो आता है क्योंकि सब लोगों ने इंपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मिलती है, इसलिए सबने अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी काफी बढ़ा ली है। एक्चुअली इंडियन डिमांड के सामने 30% एक्सेस कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलवेज डिमांड के सामने कोई मार्जिन लेके तो चलना ही है। कैपेसिटी है तो सब लोग थोड़ा नंबर्स बढ़ाने में कंपटीशन करते हैं। सामने डिमांड भी अच्छा है, आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम कंजम्पशन पर हेड पहले था उससे अच्छा है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी अब विलेज लेवल पे भी अच्छा है, तो आइसक्रीम सेल्फ आउटलेट नंबर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो फ्रीजर है पूरी आइसक्रीम की कोल्ड चेन है उसमें एक अच्छी डिमांड है। अब हम लोगों ने करंट में आप देखें ई कॉमर्स को हमने 20% काम किया तो 22-23 करोड़ का बिजनेस ई कॉमर्स से है। पूरे साल में अगर हम देखें तो 100-120 करोड़, तो ये कम्प्लीटली नया एक हमारे लिए रेवेन्यू सोर्स आया कि जो हम काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स के साथ में आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी है, लोग आजकल वर्किंग फैमिली हो गया, इसीलिए सबको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी अच्छा स्कोप है QSR में। कुछ गवर्नमेंट के कंप्लायंस और गाइडेंस भी है, कई सारी प्रोडक्ट्स 1 by 1 ये लोग BIS में कन्वर्ट करते हैं, रेटिंग आ रहा है, इसीलिए ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छा मौका है। अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज का बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो रहा है। एग्रीकल्चर में कोल्ड चेन जो हम लोग हमेशा सुनते आए और कई रिसर्च फिगर भी है 30-35% अपनी एग्रो प्रोडक्ट जो पेरिशेबल है वो वेस्ट होती है, उसमें कई सारा अच्छा कोल्ड चेन डेवलप होने की शुरुआत हो चुकी है, तो एक वो भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ हम लोग मल्टीपल सेगमेंट में काम करते हैं, प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, और हमारे 2-3 वर्टिकल जो है हमने जो डिहाइड्रेशन
एमोनिया डेयरी के ट्रंक की सॉल्यूशन। तो कुछ बिजनेस होते 6-7 साल के बाद में एक एस्टेब्लिशमेंट के बाद आपकी एक रेपुटेशन, आपकी ब्रांड एस्टेब्लिश होती है, तो एक बड़े प्रोजेक्ट भी आते हैं, अच्छे मार्जिन के साथ भी आते हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर आइसमेक की बात कर रहा हूँ कि आइसमेक के लिए ये 2-3 नए बिजनेस से ये अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मुझे लगता है मैं आइसमेक की एंगल से बोलूँ तो हमने जो स्टोर कैपेसिटी या हमारे जो बिजनेस प्लान है उसमें लगता है कहीं कि या तो हम लोग कैपेसिटी जो इंस्टॉल की उसकी थोड़ी और ज्यादा भी होती तो हम लोग उसको यूज कर पाते। और फर्स्ट क्वार्टर की जो बात करें, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा लॉस, तो हमारी हिस्ट्री में शायद हमारा पहली क्वार्टर है जो हमने लॉस किया। फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं हमारे जितने भी लिस्टेड पीयर्स है सबकी बैलेंस शीट डिप्रेस हुई है। किसी का तो टॉप लाइन में अच्छा नंबर कम हो गया, बॉटम लाइन भी सबकी कम हुई भी था। तो अर्ली मानसून जो 10 से 12 जून में बारिश फुल फ्लेज शुरू हो गया, मई में एक 4-5 दिन का बारिश जो हुआ, इसी वजह से एक जो फर्स्ट क्वार्टर का जो सीजन डिमांड का कंसिस्टेंसी होता है ना, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर का, वो फर्स्ट क्वार्टर ब्रेक हो गया। इसलिए हमारा भी टारगेट था कि 130 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में किया जाए, लेकिन थोड़ा सा अर्ली रेन की वजह से वो नहीं हो पाया। ओवरऑल मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो अच्छा है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं। एवरेज अपना इनकम भी बढ़ रहा है, इनकम जो स्टैंडिंग है, हम जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वो कस्टमर की बेसिक डिमांड है, जैसा हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट वेजिटेबल का जो कोल्ड चेन है, ई कॉमर्स है, नए जनरेशन जो ज्यादातर लोग नए सोशल मीडिया या इससे यूज करते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, आगे भी अगले 10 साल तक अच्छा लग रहा है। Got it, sir. Got it. Future के लिए। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for this session. I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thank you everyone for joining the IceMac Refrigeration Limited Q1 FY26 earnings conference call. We appreciate your valuable time, insights and continuous support. If you have any further questions or require additional information, please feel free to reach out to us or Ayera Matasco, our investor relations team. We look forward to interacting with you again during our next quarterly update. Until then, thank you and have a great day ahead. Thank you. Thank you, sir. On behalf of IceMake Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.